السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي. It means, O my sustainer, increase my knowledge. O my sustainer, open my heart to your light and make my task easy for me. Open the knot of my tongue so that they might fully understand whatever I say. Ameen. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. Welcome my dear sisters. It's Monday today. We are studying para number 30, Surat Al-Humazah. तिलावत होगी। आप सब कुरान खोल लीजिए, मेरे साथ मिलकर पढ़िए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरत हुमज़ा। بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. صدق اللہ العظیم. الحمدللہ رب العالمین. سورت الہمزہ مکی سورہ ہے، 9 آیات، 1 رکوع. ہمزہ اور لمزہ کیا ہے؟ یہ غیبت، پیٹھ پیچھے کسی کی برائی کرنا، یا سامنے، اس کے سامنے اسے تانا مارنا، اس کے فالٹس نکالنا، یہ دونوں ہمزہ اور لمزہ میں آتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر 1. Kindly share the screen. وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ. وَيْلٌ، ویل ہلاکت ہے، بربادی ہے، ڈسٹرکشن، کمپلیٹ ڈسٹرکشن. جہنم کی سب سے خطرناک وادی، ون آف دا پورشنس آف دا ہیل فائر، وہ اتنا خطرناک ہے کہ جہنم اپنے آپ میں کتنی خطرناک چیز ہے. وڈ اینی بڈی وانٹ ٹو وزٹ دا ہیل فائر؟ کسی کو شوق ہے جہنم دیکھنے کا؟ No, never. نیور. تو جہنم سے ہم سب پناہ مانگتے ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہم اجرنی من النار. اور اس جہنم میں اتنا خطرناک ایک حصہ ہے کہ پوری جہنم اللہ سے دعا کرتی ہے کہ اللہ ہم سب کو پوری جہنم کو ویل سے بچا. سو کین یو انڈرسٹینڈ دا سیوریٹی، ہاؤ سیویئر از دا ویل، کہ ہم جہنم سے پناہ مانگتے ہیں، جہنم اللہ سے ویل سے پناہ مانگتی. تو ایسی خطرناک سزا
اللہ تعالیٰ نے آلریڈی سنا دی ہے. کس کے لیے؟ لکلی، لیے ہر ایک کے. ہر ایک کون؟ جو کیا کرے؟ ہمزۃ لمزہ، جو ہمزہ لمزہ کرے. کیا ہے ہمزہ لمزہ؟ That we will see. We will write the definitions, we will see the examples and hadith, inshallah. اور یہ ویل صرف مزہ لمزہ کرنے والوں کے لیے نہیں، ویل اس شخص کے لیے بھی ہے. آیت 2، الذی، جو جمع کرے، جو جمع کرتا رہے، مالن، مال کو، ویلتھ، وعددہ، اور وہ اسے گن گن کر سنبھال کر رکھے اس مال کو. تو یہ یہاں پر 3 خرابیاں بتائی گئی. جس شخص کے اندر یہ کوالٹیز ہو، اس کے اندر ہمزہ ہو، لمزہ ہو، ہاں ذرا ہمزہ لمزہ کے ایگزامپلس دینا ون بائی ون. چاند آنٹی، سوریا. Kindly take over for 2 minutes. ولید بن مغیرہ وہ غیبت کرتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اگینسٹ. کے پیٹھ پیچھے تانے دیتا تھا. Two definitions of ہموزہ اور لموزہ. ہموزہ is پیٹھ پیچھے بولنا and لموزہ is کسی کو نیچا دکھانا، حقیر سمجھنا. ہم کو یہ ایسے کبھی نہیں سمجھنا چاہیے کہ کوئی بھی ہم سے کم کر ہے. تین کوالٹیز جو ہے وہ شخص اس کے لیے بربادی ہے جو پیٹھ پیچھے غیبت کرتا ہے. پوائنٹ 2 جو مال جمع کرتا ہے، اور پوائنٹ 3 ہے جو اس کا مال گن گن کے رکھتا ہے اور اوروں پہ خرچ نہیں کرتا. ایک حدیث کا مفہوم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے بندوں میں سے بدترین لوگ وہ ہے جو چگل خوری کرتے ہیں، دوستوں میں فساد ڈالتے ہیں اور بے گناہ لوگوں کے عیب تلاش کرتے ہیں. حدیث اوور. Very nice. بہت اچھی چاند آنٹی، جزاک اللہ خیرا. تو ہم پڑھ رہے ہیں سورت ہمزہ. چاند آنٹی نے آپ کو اس کی ڈیفینیشن بھی بتائی، کچھ ایگزامپلس بھی دیے، اور ہم لوگ بھی اس چیز سے غافل نہیں ہیں. وی نو کہ یہ ہمزہ لمزہ ہے کیا، اور کون کرتا ہے، کیوں کرتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اللہ کے بندوں میں سے، حدیث لکھ لیجیے. ابھی اگر ہم دیکھیں تو یہ ایک حدیث اور یہ پہلی آیت، اتنا ہی ہمارے لیے کافی ہو جائے کہ ہماری زبان بند ہو جائے. پر ہماری زبان ہے کہ بند ہی نہیں ہوتی. کیا یہ ایک پہلی آیت isn't it not enough for us کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے خطرناک پنشمنٹ، جو اللہ کے پاس سب سے خطرناک پنشمنٹ ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے اناؤنس کر دی ہے. کیا یہ بات ہمارے لیے کافی نہیں کہ ہم اپنی زبانوں پہ لگام لگا دیں؟ ٹیل می. کیا پھر ہم کس سے ڈریں گے؟ اگر ہم ویل سے نہیں ڈرتے، اللہ کی سزا سے نہیں ڈرتے، کس سے ڈریں گے بولو؟ اچھا ابھی یہ والی حدیث لکھ لیجئے. اور اس کے بعد بھی اگر ہم نہیں ڈرتے تو پھر we have to check ourselves کہ ہم کیا ہے. اوکے لکھ لیجئے. حدیث کا مفہوم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
اللہ کے بندوں میں، اللہ کے بندوں میں بدترین، بدترین، ورسٹ، بریکٹ میں ورسٹ لکھ لیجیے، دی ورسٹ، بدترین لوگ وہ ہے، بدترین لوگ وہ ہے جو غیبت کرتے ہیں، جو غیبت کرتے ہیں، قوما لوگوں پر، لوگوں کے عیب نکالتے ہیں، قوما لوگوں کے عیب نکالتے ہیں اور لوگوں میں فساد ڈالتے ہیں، اور لوگوں میں فساد ڈالتے، تین کام جو کرتے وہ بدترین لوگ ہیں اللہ کے بندوں میں۔ تو اللہ کے بندے کون ہیں بتاؤ؟ ہم سب، ہم ہی ہے نا اللہ کے بندے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس سورہ میں یہ نہیں فرمایا کہ مومن ہے یا مشرک ہے یا کافر ہے، ایمان والا ہے یا نہیں ہے، وہ کوئی بات اس میں نہیں آئی کہ وہ نماز پڑھتا ہے یا روزے رکھتا ہے یا زکوٰۃ یا صدقہ یا حج، کوئی بات نہیں آئی اس میں، بس یہ ہماری زبان۔ اور وہ پھر اللہ تعالیٰ نے فرما دیا وَيْلٌ لِّكُلِّ، لیے ہر ایک کے، پھر وہ کوئی بھی ہو جو ایسا کرے، تو بدترین لوگ وہ ہے، نمبر 1 جو غیبت کرتے ہیں، نمبر 2 جو لوگوں پر عیب، لوگوں کے عیب نکالتے ہیں، اور نمبر 3 لوگوں میں فساد ڈالتے ہیں۔ اب ایک حدیث نے بدترین بنا دیا ان لوگوں، اور دوسرے حدیث نے جہنم کی ویل میں، دوسری آیت نے جہنم کی ویل میں پہنچا دیا۔ کیا اتنی بات کافی نہیں تھی ہمارے لیے؟ اور کیا ہم اس سورہ کو پہلی بار پڑھ رہے ہیں؟ یا پھر کیا ہمیں ہمزہ لمزہ کی میننگ سمجھ نہیں آتی؟ یا ہمارے دل میں اللہ اور جہنم کا کوئی خوف نہیں ہے؟ یا کیا ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ساری صورتیں، آیتیں، حدیثیں ہمارے لیے نہیں ہے؟ واٹ از دا تھنگ، واٹ از دا سچویشن؟ پھر کیوں ہم باز نہیں آتے؟ وائی ڈونٹ وی اسٹاپ؟ اور جب کسی کو کہا جاتا ہے کہ غیبت نہ کرو تو کہتے کہ یہ غیبت نہیں ہے۔ دیٹ مینس اپنے آپ کو پھر سے ایکسکیوز کر لیتے کہ یہ غیبت نہیں ہے۔ تو پھر غیبت ہے کیا؟ تو پھر غیبت کی ڈیفینیشن کون بتائے گا ہم کو؟ کون سکھائے گا ہم کو کہ غیبت کیا ہے؟ بتاؤ مجھے، کس سے سیکھنا چاہتے ہو؟ مجھ سے نہیں اللہ سیکھنا چاہتے نا، تو میں تو نہیں سکھانا چاہتی۔ ہاں، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم سیکھیں گے کہ غیبت کیا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا صحابہ اکرام سے کہ غیبت کیا ہے بتاؤ؟ تو صحابہ اکرام تو اپنی زبان کو قابو میں رکھتے تھے۔ صحابہ اکرام نے کہا کہ اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتا ہے، وی ڈونٹ نو واٹ از غیبت، آپ بتائیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غیبت یہ ہے کہ تم اپنے بھائی کا اس طرح ذکر کرو، تم اپنے بھائی کا اس طرح ذکر کرو کہ جسے سننا وہ ناپسند کرتا ہے۔ تم اپنے بھائی کا اس طرح ذکر کرو جسے سننا وہ ناپسند کرتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا کہ اگر وہ برائی اس میں موجود ہو تو؟ کیا پوچھا صحابہ اکرام نے؟ کہ اگر اس کے اندر یہ برائی موجود ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ برائی اس میں موجود ہے تو ہی تو نے اس کی غیبت کی، یعنی اس کے اندر برائی ہے تو ہے، تم اس برائی کا ذکر کر رہے ہو اس کی غیر موجودگی میں، تو تم غیبت کر۔ ہاں صحیح بات ہے، اس کے اندر ہے یہ برائی، تو ہے
तुम्हारा क्या है, तुम क्यों उसका जिक्र कर रहे हो, वो भी वो यहाँ नहीं है और तुम उसकी बुराई कर रहे हो, तो तुम गीबत कर रहे हो। और अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगर आगे फरमाया, अगर उस शख्स में वो बुराई ना हो, तो अगर उस शख्स में वो बुराई ना हो जो तुम उसका जिक्र कर रहे हो, तो तूने उस पर बोहतान बांधा। बोहतान ब्रैकेट में लिख लीजिए, इल्जाम, एक्यूजेशन, एलिगेशन। तो तूने उस पर बोहतान बांधा, इल्जाम लगाया, अक्यूज किया। तो अब ये दूसरे वाले में, दूसरी सिचुएशन में जहां उसमें वो बुराई नहीं और तुम कह रहे हो, तो तुमने उस पर इल्जाम भी लगाया, नंबर 1। नंबर 2, तुमने झूठ भी बोला क्योंकि उसमें वो बुराई है नहीं। तो नंबर 1, तुमने उस पर इल्जाम भी लगाया, नंबर 2, तुमने झूठ भी बोला, और नंबर 3, तुमने गीबत भी की। कितने गुनाह हो गए तुम्हारे सर पे? कितने? 3। 3 गुना हो गए। और 3 गुना करने के बाद भी हम कहते हैं कि ये गीबत नहीं है। तो हमारे कहने से क्या होता है? क्योंकि वो बंदा तो वहां मौजूद ही नहीं जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो क्या उस बंदे को पता चलेगा? अभी उसको मालूम है कि आप उसकी गीबत कर रहे हो? नहीं, उसको तो मालूम नहीं है। आपने अपने ऊपर कितने गुनाह बढ़ा लिए उसकी गीबत करके, और आपको पता है फिर किसे मालूम है कि आप क्या कर रहे हैं? अल्लाह सुब्हान ताला को। अल्लाह को मालूम है। और अल्लाह सुब्हानहू ताला को मालूम है, वो बंदा खुद यहाँ पर अपनी सफाई पेश करने, अपने आप को डिफेंड नहीं कर सकता है, तो उसकी गैर मौजूदगी में अल्लाह ताला ऑन हिज बिहाफ तुमको ये सुना रहे हैं, वैलुल लिकुल्ली हुमज़तिल लुमज़ा। तो फिर उस इंसान को कौन डिफेंड कर रहा है? अल्लाह। अल्लाह। और वो इंसान अगर खुद यहाँ होता, तो एक तो तुम बोलते ही नहीं उसके सामने, अगर बोलते भी तो वो इंसान तुमसे क्या कर लेता? बहुत से बहुत झगड़ा कर लेता, गाली कर लेता, कभी बात ना करता। लेकिन उसकी गैर मौजूदगी में तुम्हारी ये हिम्मत, अल्लाह ताला फरमा, मेरे बंदे की बात करने की तुम्हारी मजाल, तो लो, अब तुम्हारे लिए वेल है। और इस वेल को बिल्कुल मामूली ना समझे। आप सोचिए, आप पढ़ चुके हैं ना कि किसी मजलूम की बद्दुआ, किसी मजलूम की बद्दुआ कभी खाली नहीं जाती ना। तो वो बद्दुआ किसने दी? मजलूम ने, वो खाली नहीं जाती। इसके बाद आप पढ़ चुके हो कि किसी किसी सिचुएशन में फरिश्ते लानत भेजते, तो फरिश्तों की लानत यानी बद्दुआ भी खाली जाएगी, इट विल बी एक्सेप्टेड। तो मजलूम की बद्दुआ से हम डरते, फरिश्तों की लानत से हम डरते, लेकिन अल्लाह ताला की वेल से, अल्लाह की सुनाई हुई सजा से हम नहीं डरते। तो इतनी क्या प्रॉब्लम है कि हमारी जबान कंट्रोल में नहीं रहती? अच्छा, मुझे गीबत करने का एक फायदा बताओ। नुकसान तो बहुत है, गीबत करने का एक फायदा बताओ मुझे। कम ऑन, विल डिस्कस इट लाइटली। बोलो। अगर किसी का रिश्ता होता हो और अगर हम वो लड़के की या फैमिली की बुराई बता दे ताकि वो लड़की बच जाए, तो इट इज अलाउड, आई थिंक। नहीं, वो अलाउड की सिचुएशन नहीं पूछ रही हूँ मैं पूछ रही हूँ किसी की गीबत करने से मेरा क्या फायदा होता है, ये बताइए। है कोई फायदा? हाँ जी, आपने एक बार बताया था ना कि यू नो बाय एक्यूजिंग समबडी वी बिकम रिलैक्स, कि वो इंसान तो ऐसी है, एंड देन
we are relaxed कि we are not wrong, that person is wrong. हाँ, तो किसी को बुरा बताकर हम एक्चुअली अपने आप को बहुत अच्छा साबित करना चाहते कि देखना वो तो कैसी है, वो तो ऐसी है, वो तो वैसी है। एंड आई एम स्पीकिंग ऑल इन फेमिनाइन जेंडर, क्योंकि ये गीबत करने का शौक भी हम औरतों को ही होता है और हम गीबत भी दूसरी औरतों की ही करते हैं। और ये भी कितनी बुरी बात है कि एक औरत होते हुए हम दूसरी औरत की तकलीफ को महसूस नहीं कर सकते। तो फिर कितनी जलन है हमारे अंदर, कितना हसद है हमारे अंदर कि अपने आप को अच्छा साबित करने के लिए दूसरे को नीचे दिखाना उसकी गैर मौजूदगी में, इन हर एब्सेंस। ये क्या दिखाता है कि वो बंदा तो भले जैसा भी है, लेकिन मेरा कैरेक्टर कैसा है। जो अगर मैं गीबत कर रही हूं तो क्या आप मेरे कैरेक्टर को नहीं पहचान लोगे कि मैं कैसी हूँ? फिर बहुत अच्छी हूँ, जो दूसरों की बुराई करने वाला बहुत अच्छा होता है। नहीं, बिल्कुल नहीं। तो फिर आप तो पहचान लोगे ना कि मेरा कैरेक्टर कैसा है, मेरे अखलाक कैसे। तो जो भी आपके पास गीबत करे ना, उसके अखलाक हम समझ जाए और ये भी समझ जाए कि ये किसी और की बात मेरे पास कर रही है तो मेरी बात भी किसी और के पास करेगी। अल्लाहु अकबर, अस्तगफिरुल्लाह। अच्छा, अगर बहुत ज्यादा मेरे अंदर किसी की खैर ख्वाही है, आई एम अ वेल विशर ऑफ दैट पर्सन, जो हमारी दोस्त है या रिलेटिव है, हमारी रिश्तेदार है, तो फिर हमें क्या चाहिए कि हम बहुत प्यार से अच्छे तरीके से उससे बात करें, उसे समझाए, अगर समझा सकते हैं तो बड़ी मोहब्बत से, ताने मार कर नहीं। क्योंकि नाउ वी आर कमिंग टू लुमजा ऑल्सो, कि पीठ पीछे को हुमजा कहते हैं, और ऑन द फेस किसी के सामने किसी को इंसल्ट करना, उसे ताने मारना, उसके नुक्स निकालना, किसी को सामने ही कह देना कि ए काली, मोटी, लंगड़ी, लूली, और हम कहेंगे दिस इज द फैक्ट। तो ये सारे किसी के फ्लॉज निकालना on the face, to insult, to disrespect, to use harsh words, चाहे वो जबान से हो या किससे हो, either with words और एक्शंस। actions, या आंखों का इशारा, हाथ का इशारा, expressions। तो इससे हम जब किसी की बेइज्जती करते हैं, इंसल्ट करते हैं, तो फिर ये लुमजा में आ जाता है। यहाँ तक कि किसी को क्रिटिसाइज कर देना। कोई आया, आपने उसको ऊपर से नीचे तक देखा, कुछ भी नहीं बोला, सिर्फ आपने उसको ऊपर से नीचे तक देखा, तो वो इंसान को आपने लुमजा कर दिया और आप पहुंच गए वेल में। अब बताओ, तो फिर अपनी आंखें और अपनी जबान और अपनी रिएक्शंस किसके कंट्रोल में? अपने कंट्रोल में। तो इसे क्या करना है? बहुत केयरफुल रहना है। अल्लाह अकबर। कि अगर कोई समझो काला है और उसे काला कहना, कोई लंगड़ा है उसे लंगड़ा कहना, कोई बहंगा है उसको बहंगा कहना, ये तो हकीकत है। तो ये कहना क्यों वेल में पहुंचाने वाली बात है? क्यों? उसको बुरा लगेगा बाजी। उसको बहुत बुरा लगेगा, नंबर 1। नंबर 2, सोचिए जरा, ये तो उसको बहुत बुरा लगेगा, ये तो हकीकत है। और क्यों क्यों? बनाया बहुत उसको अच्छे, सुरैया बोली कि उसको वैसा अल्लाह ने बनाया। तो तुमने एक्चुअली किसकी इंसल्ट की? अल्लाह की। तो फिर अल्लाह ताला ने अगर वेल सुना दी तो क्या गलत किया? इजंट इट? अल्लाह ताला ने वेल
की सजा दे दी क्योंकि तुमने अल्लाह का इंसल्ट किया है, उस इंसान की नहीं इंसल्ट की है तुमने। अल्लाह अकबर। तो ये समझना और सुधरना और अपने वालों को सुधारना, अपने बच्चों को ये सिखाना कि नहीं करनी है आपको किसी की बात। कहीं से आए तो शुरू हो गए, कोई अपने घर से गया तो फिर उसकी बुराइयां शुरू। तो we also have to stop and we have to teach our children to stop. ये होता है हमसे? नहीं होता। कितनी बार हम पढ़ रहे हैं सूरत मजा, ये वेल ऑन द फेस हम कैसे मजाक उड़ाते हैं किसी की बॉडी में, यानी बॉडी में कोई डिफेक्ट है, जैसे अभी हमने बात की, किसी के कैरेक्टर को भी हम उछालते है ना, किसी के कैरेक्टर को भी उछालते हैं कि वो कंजूस है, या वो उसको तो अकल नहीं, उसको तो समझ नहीं, उन्होंने दुनिया नहीं देखी, बेवकूफी के काम करते हैं। तो अल्लाह का शुक्र अदा करो कि अल्लाह ने तुमको अकल दी है, लेकिन हर एक के पास नहीं है अकल। तो तुम अपनी अकलमंदी का ये सबूत दोगे कि दूसरों को नीचा दिखाओगे, तो फिर अपने आप को ज्यादा अकलमंद समझने वाले, यही तो तकब्बुर है। और ये तकब्बुर ही तो ले डूबता है। किसी के घर पे जाते हैं तो उसके घर में नुक्स निकालते, तो उनका घर कितना गंदा था। अरे वो जाने, उनका घर जाने, उनके घर वाले कैसे थे, कोई बाहर नहीं आया हमसे बात करने। हम लोग ये सब बातें करते कि नहीं, कि कोई नहीं आया बाहर, हमसे किसी ने बात नहीं की, उसके बच्चे अंदर ही थे, उन लोग को इतनी रिस्पेक्ट नहीं कि आके बात करे। डू वी डू दिस? ये नॉर्मल Yes. कन्वर्सेशन करते हैं ना हम लोग कि नहीं करते? करते हैं। तो अब क्या है ये सब कुछ? ये सब कुछ वी हैव टू स्टॉप। किसी का ड्रेस, किसी के लिबास में, किसी के खाने में तो बहुत ऐब निकालते हैं। अल्लाह अकबर। पहले तो ये मुझे बताओ कि क्या हर इंसान खाना बनाने में, खाना खिलाने में परफेक्ट होता है? जब आप खुद खाना बनाते हो तो क्या कभी नहीं होता कि नमक कम हो गया, कभी ये हो गया, कभी थोड़ा सा चिपक गया, कभी हल्का सा जल गया, कभी कच्चा रह गया? हो सकता है। इज एवरी वुमन अ शेफ? तो कितनी बड़ी बड़ी एक्सपेक्टेशंस, और खाने बैठते हैं, उसने इतनी मेहनत से खाना बना के लाई, कोई भी क्यों ना हो, तो हम तो जज बन के बैठ जाते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत याद है? क्या उन्होंने कभी खाने में कोई कंप्लेन की? अगर उनको खाना पसंद ना आता है या नहीं खाना होता तो वो चले जाते या थोड़ा सा खा लेते। ही नेवर कंप्लेन। अल्हम्दुलिल्लाह। तो फिर ये भी तो हमारी बुरी आदतें हैं, दूसरों के बच्चों की गलतियां, दूसरों के आदतों में, फिर दूसरों के गुनाह कुरेद कुरेद के निकालना। जैसे कि मैं बहुत परफेक्ट हूँ दूसरों के गुनाहों में नुक्स निकालना, चाहे तो सामने बात करना या पीछे से बात करना। नॉलेज में, डिग्रीज में, और माल की तो क्या बात करेंगे। फिर स्पेशली शादियों में जाते हैं तब दीन के बारे में। अभी हम थोड़ा सा इल्म के हासिल कर लिए, थोड़ा दीन में आ गए, तो एज इफ हमको तो लाइसेंस मिल गया है कि हम हर एक के नुक्स निकालें। व्हाट अबाउट अस? फिर हमको आता है बैकफायर। फिर बच्चे ही बोलते हैं कि 50 साल तक तो आपने भी कुछ नहीं किए थे, अभी करने लगे, और हमसे उम्मीद करते हो कि हम अभी 10-15 साल के हैं और हम सब कुछ कर ले। फिर वो बैकफायर भी बर्दाश्त नहीं होता है। तो क्यों हमको किसने ये लाइसेंस दिया है? और ये लाइसेंस, ये जहन्नम में, वेल में जाने का लाइसेंस है।
अल्लाह अकबर। किसी के चाल ढाल, बर्ताव, मैनरिज्म, यहाँ तक कि दूसरों की हंसी पे भी हंसी उड़ाते कि वो कैसा हंसती है, और दूसरों के रोने पर भी मजाक उड़ाते हैं कि वो कैसा भय करके रो रही थी। तौबा अस्तगफिरुल्लाह। यहाँ तक कि किसी की मैयत में किसी के घर जाते हैं तो वहां बैठकर भी गीबत करते हैं, और वहां से आकर भी। इतना हमारा स्टैंडर्ड लो है। किसका स्टैंडर्ड लो है? गीबत करने वाले का या जिसकी हम कर रहे हैं उसका? बताओ। गीबत करने वाले। एग्जैक्टली। अल्लाह अकबर, अस्तगफिरुल्लाह। एक और हदीस लिख लीजिए। हदीस लिखने से पहले एक क्वेश्चन करती हूँ कि कितने हम में से कितने लोगों ने अब सूद, इंटरेस्ट लेना देना बंद कर दिया है? बिल्कुल सूद, हम लोग सूद से दूर रहते हैं। व्हाट इज सूद? इंटरेस्ट, रिबा। हलाल है या हराम? हराम। हराम। है ना? और सूद लेने वाला कहाँ जाएगा, देने वाला कहाँ जाएगा? जहन्नम। तो हम लोग डरते हैं ना कि वो हराम है। फिर गीबत हलाल है कि हराम? हराम। जिसके लिए जहन्नम की सजा सुना दी गई, वो सारे काम क्या है फिर? हराम है ना? अब ये हदीस सुन लीजिए। अगर हमने सूद छोड़ दिया है तो जरा ये हदीस सुन लीजिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे बड़ा सूद, बाप रे, सबसे बड़ा सूद ये है, सबसे बड़ा सूद ये है कि आदमी ना हक किसी मुसलमान की बेइज्जती करे। सबसे बड़ा सूद ये है कि आदमी ना हक किसी मुसलमान की बेइज्जती करे। हदीस ओवर। काइंडली रिपीट। हदीस का मफहूम है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे बड़ा सूद ये है कि आदमी ना हक किसी मुसलमान की बेइज्जती करे। हदीस ओवर। जी। तो किसकी बेइज्जती करने पर सबसे बड़ा सूद है? मुसलमान की। है ना? तो गैर मुस्लिम की कर सकते हैं, इसका मतलब नहीं। नहीं। अभी मुसलमान का जिक्र हुआ ना अभी, तो अभी एक क्वेश्चन लिखिए कि कौन कौन मुसलमान है। मुसलमान कौन? ऐसा क्वेश्चन लिखिए और नीचे हदीस से जवाब लिखिए। हदीस का मफहूम है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमान वो है, मुसलमान वो है जिसकी जबान और हाथ से, जिसकी जबान और हाथ से दूसरे मुसलमान महफूज रहे। मुसलमान वो है जिसकी जबान और हाथ से दूसरे मुसलमान महफूज रहे। अब दोनों हदीसों को मिला लो कि क्या पहले तो फिर मैं मुसलमान ही नहीं अगर मेरी जबान से कोई और महफूज ही नहीं, और वो जबान चाहे सामने चले या पीछे चले, और फिर उसकी नाहक बेइज्जती किए, तो उससे ये सबसे बड़ा सूद है, यानी सूदखोर। अभी और क्या सुनना चाहते हैं हम लोग? फिर भी हर बार अपने आप को तसल्ली देते हैं कि नहीं नहीं नहीं, मैं तो सिर्फ अपना दिल की बात कर रही हूँ, अपना सिर्फ दिल हल्का कर रही हूँ। हम किसके पास बात करेंगे?
अपनों ही के पास बात करेंगे तो दूसरों की क्या बात करने की जरूरत है? आपको अपने दिल की बात करनी है तो अपनी बात करो, दूसरों की बात क्यों करते हो? क्योंकि जब आप किसी और की बात करते हो ना तो आप आधी बात करते हो. वन साइडेड स्टोरी, isn't it? और अदल और इंसाफ की बात तो तब होगी ना कि दोनों पार्टीज आमने सामने हो और दोनों अपनी अपनी बात रखे, तभी तो वो बात स्टोरी पूरी होगी ना. हम तो किसी को सिर्फ अपने दिल की बात यानी अपनी तरफ की आधी स्टोरी बताते. उसको क्या फील हुआ था, उसने तुमको क्यों ऐसा बोली, उसने तुम पर जुल्म किया तो क्या वो जुल्म था या तुमने पहले जुल्म किया था तो उसके बदले में तुम पर जुल्म किया गया, वो सब कौन बताएगा? फिर अपनी स्टोरी सुना के हम बन जाते हैं बहुत बेचारी, बहुत मजलूम, एंड शी इज सो पेशेंट कि इसने सब बर्दाश्त कर लिया. और एक बहुत बुराई हम लोग करते हैं कि जब कोई हमें वो तकलीफ दे रहा होता है ना. अब समझो आज से 10 साल पहले किसी ने मुझे बहुत बुरा कहा, मुझे ताने मारे, मुझ पे जुल्म किया आज से 10 साल पहले, तो उस वक्त तो मैं खामोश रह गई. बराबर, उस वक्त मैं क्या हो गई? खामोश. और मैंने सब्र कर लिए थे ना सब्र. फिर आज क्या हो गया? आज तुमने उसी बात को फिर से खोल के अपने सब्र को भी जाया कर दिया और अपने आप को गीबत, गुनाह, झूठ और सूद में और वेल में पहुंचा दिया. तो वो जो सब्र किया था वो बहुत अच्छा सब्र था. उसी सब्र को कंटिन्यू करते तो वो जन्नत का दरवाजा खोल देता आपके लिए. तो बहुत मुश्किल है ना. जहन्नम का रास्ता बहुत आसान है. किसी की बात कर लो आप जहन्नम में पहुंच जाओ. और सब्र करना बहुत मुश्किल. तभी तो फिर जन्नत का दरवाजा, जन्नत का रास्ता मुश्किल है. तो व्हाट डू वी चूज देन? मुश्किल या आसान? क्या चूज करना मुश्किल चूज करना है ना. थोड़ी तकलीफ जरूर होगी, लेकिन क्यों ना हम और ज्यादा साबिर बने इंशाल्लाह. और आसान नहीं है, अल्लाह से ही दुआ करेंगे. क्या करेंगे? रब्बना अफ्रिग अलैना सब्र वसब्बित अक़दामना वंसुरना अलल कौमिल काफिरीन. या अल्लाह तू उंडेल दे हम पर सब्र और हमारे कदम जमाए रख और हमें काफिर कौम के खिलाफ हमारी मदद फरमा. हमारा दुश्मन शैतान, उसको बड़ा मजा आता है कि चलो ये तो बहुत अच्छी अभी नमाजें इतनी पढ़ने लगी है, क्लास ज्वाइन करती है, तहज्जुद पढ़ती है, रोजे रखती है, इतनी तिलावत करती है, अभी क्या करो, इसकी सारी नेकियां जाए करो. फिर उसके अंदर तकब्बुर भर देता है कि मैं बहुत अच्छी हूँ, फिर वो दूसरों की बुराइयां करना शुरू कर देता. तो शैतान ने सारी नेकियां हमारी जाय करा दिया. अल्लाह अकबर. तो ये एरोगेंस की वजह से इंसान करता है. और एरोगेंस किस किस चीज की वजह से आता है? ये तकब्बुर. एक तो पैसा जो वो जमा कर करके रखता है. तो आप देखिए जो अमीर लोग होते हैं ना, अमीर लोग, सो कॉल्ड वेल्दी पीपल, तो वो तो समझ, उनको किसी की परवाह नहीं है ना. सोसाइटी में किसी का खौफ नहीं, वो अपने आप को सबसे बड़े लोग समझते हैं. बेचारे गरीब लोग कहते भी है कि वो बड़े लोग. अब अल्लाह की नजर में कौन बड़ा और कौन छोटा, वो तो अलग ही मसला है. हमको पता है ना कि कयामत के दिन सबसे आसान और पहला और फटाफट हल्का हिसाब किसका होगा? किसका होगा? गरीबों का गरीब मिस्कीन का. तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या दुआ करते थे?
کہ اللہ مجھے کن کے ساتھ اٹھانا, کیا بن کے اٹھانا؟ مسکین غریب. غریب. ہے نا. اور ہم لوگ کبھی یہ دعا کرتے ہیں؟ ہم لوگ تو بڑے اور چھوٹے کرتے رہتے ہیں. تو یہ ایروگنس ایک تو مال کی وجہ سے آتا ہے, دوسرا یہ تکبر ایروگنس آتا ہے ہمارے پاس اگر کوئی سکلز ہے, کوئی پوزیشن ہے, ابھی ہمارے پاس جو علم ہے, نالج, اس کی وجہ سے بھی یہ تکبر آتا ہے. اور پھر یہ جھلکتا ہے ہمارے اخلاق میں, ہماری زبان سے, ہماری ایکشنز میں. تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے بہت علم حاصل کر لیا تو ایمان ہمارا بڑھ گیا. یہی سمجھتے نا ہم, علم حاصل کر لیا ہے تو ایمان ہمارا بڑھ گیا. لیکن یہ سارے ہمارے اعمال, ایکشنز, اخلاق, اس میں پھر کیا جھلکتا ہے کہ ایمان تو ایکچولی بڑھنے کے بجائے گھٹ گیا. It has come to its lowest. اور کیریکٹر بھی lowest. تو پھر ایک اور بات ڈاکٹر فرحت ہاشمی صاحبہ نے بتائی کہ جو غیبت کرنے والے لوگ ہیں ان کا ایمان بھی کمزور ہے اور ان کے اخلاق بھی کمزور. اور یہ لوگ, ان کی زندگی میں کوئی مشن نہیں ہوتا, کوئی گول, کوئی, اردو میں کیا کہتے ہیں اس کو, گول اینڈ مشن کو, مقصد حیات. مقصد. ان کی زندگی کا کوئی صحیح مقصد نہیں ہوتا. پھر یہ کیا کرتے ہیں؟ اپنا ٹائم, انرجی, اپنا نالج, اپنا پیسہ, یہ سب کچھ یوٹیلائز کرتے ہیں یا مس یوز کرتے ہیں؟ یہ سب کچھ مس یوز کر کے اور پھر وہ راستہ جہنم کا پکڑ لیتے. اللہ اکبر. ایکسکیوز می. تو ہم نے یہاں سے لیسن یہ سیکھا کہ ہمیں پھر کیا کرنا ہے. کہ ہم تو رہتے ہیں نا سوسائٹی میں, لوگ ہم کو ملتے ہیں, کبھی کسی سے انبن ہوتی ہے, کسی کوئی برا بھی ہمارے ساتھ کرتا ہے, تو پھر ہمیں کیا کرنا ہے؟ اللہ کی خاطر, اللہ کی مخلوق میں صرف اور صرف اچھائیاں دیکھنی ہے, صرف اچھائیاں دیکھنی ہے, اور اس کی برائیوں کو نظر انداز کرنا. یہ کیوں؟ کیونکہ میرے اندر بھی تو اچھائیاں اور برائیاں دونوں ہیں. اور میں کیا چاہتی ہوں کہ لوگ میری تعریف کرے یا میری برائی کرے. کیا چاہتی ہوں میں اپنے بارے میں؟ لوگ تعریف کرے, ہے نا. اور اگر ہے میرے اندر کچھ خامیاں, کچھ فالٹس, تو میں ان کو ہمیشہ کیا کرتی ہوں؟ ڈھانکتی ہوں, اور چاہتی ہوں کہ کوئی بھی اس کے بارے میں بات نہ کرے. تو ہم نے جو پارا نمبر 4 آیت نمبر 1 آف 4 پارا میں کیا پڑھے؟ لن تنالوا البر. اور وہاں پہ ہم سمجھتے کہ وہ نیکی صرف صدقہ دینے کے لیے, کہ نہیں, تم نیکی کو ہرگز نہیں پہنچ سکتے جب تک تم اپنے بھائی کے لیے وہی چاہو جو خود کے لیے چاہتے ہو. تو پھر یہاں پر بھی خود کے لیے تو ہم چاہتے کہ سب میرا اچھا دیکھے, برا نہ دیکھے. تو پھر دوسروں کے بارے میں بھی مجھے یہی کرنا ہے کہ اس کی برائیوں پہ ہمیں نہ نظر ڈالنی ہے, نہ ان کو کھولنا ہے, بلکہ اگر سچ میں اس انسان کی ویل وشر ہوں تو میں دعا کروں اللہ سے کہ اللہ اتنی اچھی ہے نا, اس کی یہ تھوڑی سی برائیاں بھی تو مٹا دے, ان پہ تو پردہ ڈال دے, اسے اتنی اچھی بنا دے 100%. دیکھیں نا, ہم جب کسی کے لیے دعا کرتے ہیں اس کے ایبسنس میں, تو فرشتے کس کے لیے دعا کرتے؟ سیم دعا ہمارے لیے, دعا کرنے والے کے لیے. ہے نا. تو ہم کیا کریں کہ کسی کی برائی دیکھے تو اس کے لیے دعا کرے تاکہ فرشتے میرے لیے دعا کرے. اس سے اچھا کہ ہم کسی کی برائی دیکھے اور غیبت کرے تاکہ اللہ تعالیٰ مجھے ویل میں پہنچا دے.
नो नो नो, तो कौन सा रास्ता बेहतर है? दुआ करना उसके लिए जो हमारी बुराई करे। तो कहाँ करते हैं हम? बट इंशाल्लाह आज से हम करेंगे, isn't it? Isn't this a beautiful option rather than getting into the hellfire? इंशाल्लाह। जैसे वलीद बिन मुगीरा के बारे में आया कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऑन द फेस भी इंसल्ट करता था, जैसे कि उसको लाइसेंस मिल गया हो कि वो सरदार है, तो ऑन द फेस भी इंसल्ट कर रहा था, बिहाइंड हिज बैक भी गीबत कर रहे थे। तो अल्लाह ताला ने ये सूरह एक्सक्यूज मी नाजिल फरमाई। फिर ये मुझे बताइए कि जब हम किसी की चुगलखोरी, गीबत, इंसल्ट करते हैं, तो ये ऐसे बाय फ्लूक हो जाता है कि अंदर से निकलता है, इंटेंशनल होता है या अनइंटेंशनल होता इंटेंशनल होता है बाजी। है ना? तो हम क्यों लोगों की इतनी बुराइयां अपने दिल और दिमाग में भर के रखते हैं कि वो सामने आए या उसका बस कोई नाम ले तो हम फूट पड़ते। तो एक्चुअली ना हमने अपने अंदर उनके उनके बारे में एक समंदर भर के रखा है। तो वो समंदर अंदर भर के रखना यानी मेरा बीपी हाई, मेरा स्ट्रेस लेवल हाई, मेरा कोलेस्ट्रॉल हाई, मेरे हार्ट में ब्लॉक्स, मेरे ब्रेन में ब्लॉक्स, मेरा गुस्सा, ये सब मैंने अंदर भर के रखा है। क्यों? क्योंकि मैं उन्हीं के बारे में सोचती रहती हूँ। तो फिर ये सारा स्ट्रेस है। इसके ऑपोजिट अल्लाह ने हमको क्या सिखाया है? अला बिजिक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। क्या मतलब इसका? अला, खबरदार हो जाओ, जान जाओ, बिजिक्रिल्लाहि, अल्लाह के जिक्र में ही क्या है? तत्मइन्नुल कुलूब, क्या है इत्मीनान ये? है कल्ब को, जिगर को। यस। तो आपको क्या चाहिए कि आपका बीपी हाई हो या नॉर्मल हो, आपके दिल में सुकून हो, इत्मीनान हो, या आप हमेशा स्ट्रेस में रहना चाहते? उसने ऐसा बोली, उसने ऐसा की, उसने ऐसा की, उसने ऐसा की। इससे बेहतर किसका जिक्र है? लाका अल्लाह का। सुभान अल्लाह। तो जो आपके दिल में होगा वो आपकी जबान पे आएगा। आपके दिल में अल्लाह होगा तो आपकी जबान पर अल्लाह का जिक्र आएगा। आपके दिल में जलन, हसद, उड़न, दुश्मनी किसी के लिए है तो वही जबान पे आएगी। तो आपकी जबान आपके दिल का आईना है। अब वी हैव टू चूज कि हमें सुकून चाहिए या स्ट्रेस, जन्नत चाहिए या जहन्नम। हम ये भी पढ़ चुके हैं सूरत फजर की आखिरी आयतों में कि जिसका दिल फिर इत्मीनान वाला हो जाता है, फिर अल्लाह ताला फरिश्तों के जरिए क्या कहलवाएंगे? या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिका राजियतम मर्जिया। ए ए नफ्से मुतमइन्ना। तो मुतमइन्ना जो नफ्स होती है वो गीबत करेगी, वो जलन, हसद, उसके अंदर तकब्बुर होगा? तो वो कैसे हो सकती है मुतमइन नफ्स? दीज आर टू ऑपोजिट थिंग्स, इजंट इट? तो फिर इंशाल्लाह फिर आगे क्या फरमाया उसमें? राजियतम मर्जिया। तुम्हारा रब तुमसे राजी, तुम अपने रब से राजी। हम तो दुनिया में किसी से राजी ही नहीं, तो रब से क्या राजी होंगे? रब से भी लड़ते रहते, शिकायतें करते रहते, और समझते हैं कि उससे, जिससे लड़ते हैं अल्लाह से और अल्लाह के बंदों से, तो जन्नत मिल जाएगी। फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। फिर तुम दाखिल हो जाओ मेरे खास बंदों में और मेरी स्पेशल जन्नत में।
तो आप जन्नत चाहते हैं या वेल? Today we have to choose. So many times we have done सूरत मजा. कितने रिमाइंडर्स और चाहिए हमको? कितने दिनों तक हम पर ये असर रहता है? फिर थोड़े दिनों में पेट दर्द शुरू हो जाता है, फिर We have- हमको चूरन. We Yes. have seen you giving live demonstration in Sonabai Hall of this ayat, and I remember every word. Alhamdulillah. आपने स्टेज पे किया था ये. यस यस, स्टेज पे किया था, राइट. अल्हम्दुलिल्लाह. सो देखिए, मेरे लिए भी बोलना बहुत आसान है, आपके लिए भी बोलना और सुनना बहुत आसान है, isn't it? But when it comes to practice, there we are falling short. क्योंकि ये बहुत नेचुरल नॉर्मल बीमारियां है, बुराइयां है. तो वी हैव टू राइज अबाव इट नाउ इंशाल्लाह. और अल्लाह का बहुत शुक्र है कि बार बार अल्लाह ताला हमें ये रिमाइंडर्स दे रहे. एंड दिस इज नॉट अ रिमाइंडर फॉर यू, इट्स फॉर मी मोर देन फॉर यू, इंशाल्लाह. तो अपना पेट दर्द, अपना दिल की जलन और जहन्नम, इन सब का इलाज अल्लाह के जिक्र में है. और अल्लाह ताला ने क्यों इतना प्रोटेक्ट किया उस शख्स को जो मौजूद भी नहीं और उसके पीठ पीछे इतनी बुराई हो रही हो? क्यों? क्योंकि पता है क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? काबे से फरमाया, काबे से. काबा सबको पता है ना, सबको पसंद है. और काबे की कितनी इज्जत और हुर्मत करते हैं. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काबे से फरमाया कि ए काबा, तू हमारे लिए मोहतरम है, तू हमारे लिए मोहतरम है, यानी एहतराम की चीज. तो मुकद्दस है, तो हमारा किबला है, लेकिन तुझसे भी ज्यादा मोहतरम एक जात रहती है, और वो इंसान है. और वो कौन है? काबे से भी ज्यादा मोहतरम एक जात, वो इंसान है. नॉट ओनली मुसलमान, एवरी ह्यूमन बीइंग. क्यों? काबा तो मिट्टी और पत्थर का है, लेकिन इंसान खून का बना है, गोश्त का बना है. इंसान के अंदर एहसासात है, उसके अंदर फीलिंग्स एंड एक्सप्रेशंस. सेंसिटिव बनाया अल्लाह ने इंसान को. तो हमको पता है ना कि अल्लाह ताला ने हर इंसान के लिए दूसरे इंसान की 3 चीजें हराम कर दी. क्या 3 चीजें हराम है? मेरी आप पर और आपकी मुझ पर 3 चीजें हराम है. नंबर 1 बोलो, मालूम है? नहीं मालूम ये वाली हदीस? जान बची, जान, माल और वेरी इज्जत. गुड, वेरी गुड. जान, माल और इज्जत. लिख लीजिए. हर इंसान की दूसरे इंसान पर ये 3 चीजें हराम है. कि ना मैं उसकी जान लूं, अगर मैं उसका मर्डर कर दूं तो हराम है. अगर मैं उसका माल उचक लूं, चोरी कर लूं, ले लूं, तो ये भी हराम है. और उसकी इज्जत, जान और माल तो हम समझते हैं, इज्जत को हम हराम नहीं समझते कि दूसरों की इज्जत उछालना हराम है. अस्तगफिरुल्लाह, नऊजुबिल्लाह, नस्तगफिरुल्लाह. एक और बहुत प्यारी हदीस हम पढ़ेंगे. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस तरह इस शहर मक्का की हुर्मत है, जिस तरह इस शहर मक्का की हुर्मत है, इस महीना जिल हज की हुर्मत है. जिस तरह इस शहर मक्का की हुर्मत है, जिस तरह इस महीने जिलहज की हुर्मत है, जिस तरह इस दिन अरफात की हुर्मत है, उसी तरह तुम्हारी जान
उसी तरह तुम्हारी जान, तुम्हारा माल और तुम्हारी इज्जत भी एक दूसरे पर हराम है। उसी तरह तुम्हारी जान, तुम्हारा माल, तुम्हारी इज्जत भी एक दूसरे पर हराम है। तब ये हुमजा लुमजा में इज्जत पर ही तो आ गई थी बात, isn't it? यहाँ तक कि हम लोग तो इस लेवल पे पहुंच गए हैं कि आज तो मिंबरों पर खड़े होकर, बड़े बड़े स्टेजेस पर खड़े होकर एक स्कॉलर, एक आलिम दूसरे आलिम की बेइज्जती कर रहा होता है। तो फिर क्या वो आलिम है या डैश है? बताओ आप मुझे। आलिम नहीं बाजी, फिर क्या है? उससे बड़ा जाहिल कौन है फिर? क्यों? क्योंकि वो स्कॉलर, उस आलिम ने सूरह हुमजा नहीं पढ़ा। फॉर मी, हम समझो किसी आलिम को बहुत परहेजगार समझते हैं, लेकिन हमें इन तमाम गुनाहों से बचना है। जाने अनजाने बहुत बारी हमसे हो जाते हैं। अल्लाह से बहुत इस्तगफार करें, खूब तौबा करें, क्योंकि अल्लाह ताला ने, आपको पता है हम सब इंसान है, बनी आदम है ना। अल्लाह ताला ने बनी आदम के बारे में क्या फरमाया? वलकद करमना बनी आदम। और बेशक अल्लाह ने बहुत इज्जत दी है, बहुत ऑनर दिया है बनी आदम को। तो क्या हम इस इज्जत के काबिल है खुद, जो दूसरों की गिबत करते हैं? हम्म? अच्छा, अभी हमारे पास बहुत से टॉपिक्स हैं। आप टॉपिक्स के सारे पॉइंट्स लिख लीजिए कि जो हम इंशाल्लाह कल की क्लास में करेंगे। Baji, कि just a gentle reminder about sajda-e-saaf you had to explain. yes, we will do that after this इंशाल्लाह। जरा क्वेश्चंस लिख लो सिर्फ कि हमको कल क्या करना है। आगे की आयतें भी करनी है जो पूरी बाकी है। फिर हमें लिखना, पढ़ना है कि कौन सी सिचुएशन में गीबत करना अलाउड है, कौन सी सिचुएशन में गीबत करना अलाउड है। फिर सिद्दीकीन कौन होते हैं, और गीबत हमने अगर कर ली है किसी की तो अब उसकी तौबा माफी कैसे मांगे, और गीबत से बचने के लिए आर देयर एनी टिप्स, एनी वेज कि जिससे हम गीबत से बच सके। ये सारे कुछ पॉइंट्स हम, गिबत से तौबा, ये सारे पॉइंट्स इंशाल्लाह हम कल करेंगे। आगे की आयतें भी कल करेंगे इंशाल्लाह। ये जो हमने एक बारी सजदा सहू की बात की थी, तो इसी के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं इंशाल्लाह। कुछ लोगों को अभी भी डिफिकल्टी है। एक्सक्यूज मी। देखिए, जब हम नमाज पढ़ते हैं और किसी वजह से कभी हमारी नमाज में या तो क्या होता है, थोड़ा सी कमी हो जाती है या कभी ज्यादती हो जाती, कभी 2 सजदे के बजाय 1 सजदा, कभी 2 रकत की बजाय 1 रकत, कमी, इसे कमी कहते हैं। और कभी हम ज्यादा कर लेते हैं तो उसे ज्यादती कहते हैं। तो इसके बारे में ये बहुत ही सिंपल छोटा सा मेरे पास ये है, दिस विल हेल्प इंशाल्लाह। इफ यू डू समथिंग एक्स्ट्रा इन द प्रेयर, नमाज में अगर आपने कुछ ज्यादा कर लिया है, चाहे सजदा हो या रकते हो बाय मिस्टेक, तो फिर आपको क्या करना है? सुजूद सहू, सलाम फेरने के बाद, सलाम फेरने के बाद आप बस 2 सजदे अदा कर दो। अगर आपने नमाज में कुछ ज्यादा कर लिया है और फिर आपको ख्याल आया कि अरे मैंने तो 3 सजदे कर दी, 2 की जगह 3 रकतें अदा कर दी, तो सलाम फेरने के बाद 2 सजदे, सजदे सहू, और उसमें आप यही पढ़े सुबहान रब्बियल
आला 3 मंथ। हाँ, अगर आपने नमाज में कुछ कमी कर दी है 2 की जगह 1, तो फिर आपको क्या करना है? सलाम फेरने से पहले आपने अत्तहियात भी पढ़ लिया, उसके बाद हमको है ना 2 तरीके मिलते हैं। एक तरीका मिलता है कि आप अत्तहियात पढ़ ले और एक सलाम राइट साइड पे करे, फिर आप 2 सजदे कर लीजिए और 2 सजदों से उठकर फिर आप सलाम फेर लीजिए। एक जगह पे आता है कि आपको सलाम करने की भी जरूरत नहीं, आप अत्तहियात पढ़ लीजिए, उसके बाद 2 सजदे कर लीजिए एक्स्ट्रा, और उसके बाद जो भी आप दुआ पढ़ते हो पढ़ के फिर सलाम फेर लीजिए। तो बहुत सी फ्लेक्सिबिलिटी हमको मिलती है इसमें। क्या क्या तरीका बताया गया, बोलो जल्दी जल्दी। अगर आपने कुछ एक्स्ट्रा पढ़ लिया है तो सब कब करना है? सजदे सहू सलाम फिराने के बाद 2 सजदे। बाद 2 सजदे, सिंपल, ये तो समझ आ गया। अगर आपने कुछ कमी कर ली और सलाम फेरने से पहले आपको याद भी आ गया नमाज में कि अरे मेरा कुछ रह गया है, तो यहाँ पे 2 ऑप्शंस आपको मिलते हैं। एक ऑप्शन ये है कि अत्तहियात पढ़ लीजिए और एक सलाम फेरिए, फिर 2 सजदे कीजिए, फिर से बैठिए, फिर से आप अत्तहियात और दुआएं पढ़ के फिर सलाम फेरें। ये एक तरीका है। दूसरा तरीका और भी सिंपल है कि आपको सलाम के पहले सलाम से पहले एक भी सलाम नहीं करना है आपको, बस अत्तहियात के बाद 2 सजदे कर दो, फिर बैठ जाओ, फिर चाहो तो फिर अत्तहियात और दुआ पढ़ो, नहीं तो आप बस दुआ पढ़ो और सलाम फेर दो। एज सिंपल एज दैट। ये सारी ऑथेंटिक हदीसों में से इसका निचोड़ फाइंड आउट करके आई ब्रॉट इट टू यू सो दैट इट बिकम्स वेरी सिंपल। और अल्लाह तो गफूरुर रहीम अरहमुर राहिमीन है, उसने हमें ये तरीका सिखा दिया। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, रब्बना तकब्बल मिन्ना।